السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور بچیوں، آپ سب نے کرسی کو دیکھا ہوگا جس کو ہم چیئر کہتے ہیں۔ اگر بہترین لکڑی کی بنائی ہوئی، لکڑی سے بنائی ہوئی چیئر ہو اور اس کی قیمت بھی اعلیٰ ہو، آپ کے سامنے یہ کرسی رکھی جائے، معلوم نہیں ہے بنانے والا کون ہے، لیکن کیا تم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کرسی اچانک بن گئی، تھرو کو انسیڈنس بن گئی؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ بتاؤ نا۔ یعنی چھوٹے بڑے سبھی بچے کیا کہیں گے؟ اس کرسی کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کا نام معلوم نہیں ہے، لیکن ہر ایک چھوٹے بڑے انسان کے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ اس کرسی کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ اس کا بنانے والا میسن ہو، معمار ہو، صاحب فن ہو، اگر وہ نابینا ہوگا، بلائنڈ ہوگا، تو کیا بلائنڈ انسان کرسی بنا سکتا ہے؟ ہاں جی؟ نہیں بنا سکتا ہے۔ یا بنا سکتا ہے؟ جب آئی سائٹ نہیں ہے، آنکھوں میں بصارت نہیں ہے، ایسا شخص کرسی یا اس جیسی کوئی چیز ہرگز نہیں بنا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی چیز کے بنانے کے لیے بینائی کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کی بینائی کے بغیر کوئی چیز کوئی بنا نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی پاگل ہوگا، میڈ مین، تو کیا وہ کرسی جیسی کوئی چیز بنا سکتا ہے؟ جی؟ ہرگز نہیں بنا سکتا ہے۔ گویا کرسی بنانے کے لیے عقل کا صحیح ہونا، درست ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بات کرو نا، کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اچھا، اگر عقل بھی ہو، صرف عقل ہوتے ہوئے بھی کوئی کرسی نہیں بنا سکتا ہے جب تک وہ اس فن کو نہ سیکھے۔ مثلا آپ کے لیے، میرے لیے کرسی بنانا بہت مشکل ہے، چونکہ ہم صاحب فن نہیں ہیں۔ تو بینائی بھی ہو، عقل بھی ہو، صاحب فن بھی ہو، ہاں صاحب فن بھی ہو۔ کچھ سمجھ آ گیا؟ اچھا، اگر کسی کے پاس بینائی بھی ہے،
अक्ल भी है, मैड नहीं है, लेकिन हाथ नहीं है, क्या ये कुर्सी बना सकता है? कुछ समझ आ गया? अच्छा, आगे चलते हैं। अगर किसी के पास हाथ भी हो लेकिन टूल्स नहीं है, समझ आ गया? वो टूल्स नहीं है जिससे कारीगर कुर्सी बनाता है, तो वो कुर्सी बना सकता है? नहीं बना सकता। कुछ समझ गया? अच्छा, अगर किसी के पास अक्ल भी है, आंखों की बीनाई भी है, हाथ भी ठीक हैं, फन सीखा हुआ है, साहिब फन है, टूल्स भी हैं, लेकिन लकड़ी नहीं है, बना सकता है? तो ये मैंने मामूली एक चीज के बारे में कुछ आपको समझाया। इसी तरह आपके जेबों में या आपके बैग्स में पेन होता है, फाउंटेन पेन। कोई इंसान ये कह सकता है ये पेन आज खुद बन गया? जिसकी अक्ल ठिकाने को होगी वो हरगिज ऐसी बात नहीं कहेगा। समझ में आ गया? इसी से आप दिमाग से काम लें कि जब मामूली चीज पेन है, कुर्सी है, नीडल है, पेंसिल है, कॉपी है, नोटबुक, बुक है, आपकी चप्पल है, टोपी वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाहम इनमें तफावत है, लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा मुश्किल है मसलन कंप्यूटर बनाना, हवाई जहाज बनाना। कुछ समझ आ गया? तो जब छोटी चीज आज खुद नहीं बन सकती है, क्या बड़ी चीज आज खुद बन सकती है? जवाब दो। हरगिज नहीं। हां, हरगिज नहीं। ये इसलिए मैं समझा रहा हूं चूंकि स्टूडेंट से क्या कहा जा रहा है? स्टूडेंट से यह कहा जा रहा है कि ये कायनात जो है, यूनिवर्स जो है, ये नेचर से पैदा हुई है। कोई समझ गया? तो नेचर क्या चीज है? अब खुद सोचिए, अगर किसी शख्स के अंदर अक्ल नहीं है, आंखों की बीनाई नहीं है, हैंड्स नहीं है, साहिब फन नहीं है, टूल्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, he can never make an item or a thing. हरगिज नहीं बना सकता है। इससे कानून, एक प्रिंसिपल साबित होता है, वो आप याद रखें। अत्तबीयतुल अमिया ला तख्लुकु शैआ। वो नेचर जिसमें बीनाई नहीं है, जिसमें विजडम नहीं है, जिसमें सलाहियत नहीं है, कुछ समझ गया? ये नेचर, ये ब्लाइंड है, इसके अंदर कोई विजडम नहीं है। ये वर्ल्ड को कुफ्र सिखाया जा रहा है। ये अल्लाह सुब्हान व तआला क्रिएटर से हटा रहे हैं। जब छोटी चीज आज खुद नहीं बन सकती है, बड़ी चीज कैसे बन सकती है?
اور ایروپلین ہو, کمپیوٹر ہو, کوئی بھی بہت ہی لطیف سوفسٹیکیٹڈ چیز ہو, جب وہ تھرو کوئنسیڈنس ایکسیڈنٹلی نہیں بن سکتی ہے تو ایک پلانٹ ہرگز نہیں بن سکتا ہے. ایک سیل از خود تھرو کوئنسیڈنس ہرگز نہیں بن سکتی ہے. ایک ایٹم ہرگز از خود وجود میں نہیں آ سکتا ہے. ایک کریچر, ایک مخلوق, سپائڈر ہو, ہاؤس فلائی ہو, ہرگز تھرو کوئنسیڈنس یہ پیدا نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کی خیر منانا, یہاں بھی, کالج میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی, اوورسیز جا کر بھی, ورنہ آپ کافر بن جائیں گے. یہ کفر سکھایا جا رہا ہے سلیبس میں, سکولوں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تھرو بکس, تھرو میڈیا. یہ سب باطل ہے, باطل. سب سے پہلے ایمان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. اسی طرح از خود غور فکر کریں. دنیا کے سب سائنٹسٹ اگر جمع ہو جائیں, بلکہ جو سب سے پہلا سائنٹسٹ تھا اس سے لے کر قیامت کے قریب تک جو بھی سائنٹسٹ آئے, اگر وہ سب جمع ہو جائیں, دے کین نیور میک اے ہاؤس فلائی. وہ ہرگز ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں. ہاؤس فلائی کے ہیڈ پر 6000 لینسز ہوتے ہیں. سائنس پڑھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. وہ سما گیا. اب یہ باتیں میں کیسے عرض کرتا ہوں؟ دیکھیے, جو حقیقی بادشاہ ہے, ملیک مقتدر ہے, الملک الحق ہے, حقیقی بادشاہ ہے, وہ ہے دی آلمائٹی گاڈ, اللہ سبحانہ و تعالی. اسی لیے اس اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرات انبیاء, پروفیٹس بھیجے تاکہ مین کائنڈ گمراہ نہ ہو جائے. اور آخر میں لاسٹ پروفٹ کو بھیجا, ان کا نام گرامی ہے حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ ہی واز بورن ان فل لائٹ آف ہسٹری. دنیا میں کسی شخص کا ریکارڈ اس قدر محفوظ نہیں ہے, اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح پوری لائف ہسٹری سیدنا محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے. ہمارے پاس محفوظ ہے, ورلڈ میں محفوظ ہے, اور کسی پیغمبر کی حیات طیبہ محفوظ نہیں ہے, کیونکہ یہ آخری پیغمبر ہیں. اس لیے ان کے لیے رب العالمین نے یہ نظام چلایا. یہ دین محفوظ ہے, اور اس دین کی جو مرکزی کتاب ہے, ڈیوائن بک ہے, وہ ہے القرآن الکریم. یہ بک آف اللہ ہے اور ورڈ آف اللہ ہے, اور یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اور اسلام ہو, قرآن کریم ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ پوری انسانیت کی گائیڈنس کے لیے, پوری انسانیت اور سب جنوں کے لیے یہ انتظام کیا گیا. ہر انسان جو بھی گلوب پر بسا ہوا ہے, سب کے لیے لاسٹ پروفٹ, آخر پروفٹ, آخری النبی الخاتم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سمجھ آ گیا؟ یہ رب العزت الجلال کا پلان ہے, منصوبہ ہے. دراصل ہم قرآن کی روشنی میں, دین کی روشنی میں اس ورلڈ میں امتحان کے لیے ہیں, ٹیسٹ کے لیے ہیں. جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا, کچھ سمجھ آ گیا, تو وہ
क़यामत जब बर्पा होगी और वलबासी बादल मौत जो तमाम अंबिया का पैगाम रहा है, रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, और ज़रूर ज़रूर हमें दोबारा जिंदा होना है। पहली बार किसी चीज को बनाना मुश्किल है, दोबारा उसको रिपीट करना ये मुश्किल नहीं है। बहरहाल जो ठीक से ईमान लाएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, खुशरमा गया अल्लाह सुब्हान व तआला पर, कुरान करीम पर, इस्लाम पर। इस्लाम की माने है सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, सरापा फर्माबरदार बनना। तो इसमें जो बेटा बेटी मर्द खातून कामयाब हो गया, ईमान लाने के बाद भी टेस्ट्स होते हैं, इम्तिहान लिया जाता है कि इस बंदे बंदी के अंदर पक्का ईमान है या कि नहीं, हर हाल में इसने ईमान की हिफाजत की या नहीं, ईमान के बाद अमल साले पर इस्तिकामत दिखाई या नहीं, शुरू से लेकर मौत के वक्त तक क्या इसने पाबंदी दिखाई, इस्तिकामत दिखाई, दवाम दिखाया। और याद रखिएगा, जो अपनी जिंदगी में पाबंदी के साथ दीन पर चलता है, बुलंद अखलाक के साथ, गुनाहों से परहेज करते हुए और आमाले सालेह पर पाबंदी करते हुए, ऐसा शख्स खुशकिस्मत है। ये जो अपनी जिंदगी में जिसके अंदर पाबंदी हो, तो यही साइन है, यही अलामत है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। जो वो तजल्जुल के साथ डगमगाते हुए चलता है, वो अमूमन नाकाम होता है। सबसे अज़ीमुश्शान हक और सबसे पहला हक उसी क्रिएटर का है, अल्लाह का है। इससे हम सबको दूर रखा जाता है और इस पर बहुत ही जबरदस्त जोर लगाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, बेहतरीन इंसान वही हो सकता है जिसे ठीक तरीके से अल्लाह और आखिरी पैगंबर ईमान हो। कोई समझ गया? वही बेहतरीन ह्यूमन बीइंग बन सकता है। जिसको ठीक से ईमान नहीं होगा, वो कुछ भी कर सकता है, वो बदतरीन कातिल साबित हो सकता है, बदतरीन जालिम साबित हो सकता है। क्योंकि ईमान का एक जुज है अल हिसाब व हक, यानी तमाम जो डीड्स एक्टिविटीज इंसान अंजाम देता है, इन सब के बारे में आखिरत में हिसाब होगा। तो ये जो मुहासबा है, अकाउंटेबिलिटी है, ये एक हकीकत है। इसको पेश नजर रखकर एक मोमिन मर्द या खातून जालिम नहीं हो सकते हैं। गलती हो सकती है, लेकिन गलती पर नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप भी याद रखें और अमल साले से आज ही से दिखाते रहें, पाबंदी के साथ, इस्तिकामत के साथ। याद रखिएगा, वल्लाह अस्साअतु हक, द डे ऑफ जजमेंट यो जो है, वल्लाह ये राइट है, ये हक है, हिसाब किताब हक है, वल्लाह पैराडाइज हक है। आपको मालूम नहीं है, दज्जाल ने अब अपना काम शुरू कर दिया। अब वो ख्याली वर्ल्ड वो लोगों को दिखा रहे हैं। पहले तो कहा जा रहा था अर्न टू लिव, काम करो जिंदगी के लिए, रहने सहने के लिए। अब अर्न के बजाय प्ले है, खेलो, अपने घर बैठकर खेलो। समझ गया? ऐसा इंतजाम बनाया जा रहा है। ख्याली जन्नत, ख्याली तबाही बर्बादी, ख्याली एंटरटेनमेंट, उसको कहते हैं मेटावर्स। समझ गया? ख्याली दुनिया।
इसी में लोगों को फंसाने जा रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने साथ वफा करें, अल्लाह के साथ वफा करें, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा करें, अपने दीन के साथ वफा करें, इबादत के साथ, ईमान के साथ, अमल साले के साथ वफा करें और अल्लाह को जानने की कोशिश करें, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने की कोशिश करें, जानने के बाद उनके हुक्म को मानने की कोशिश करें। समझ गया? वरना खतरा है, मुसलमान को भी खतरा है, जो वरासती मुसलमान होगा वो भी खतरे में है। उमूमन हम सब वरासती मुसलमान हैं। मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो एक्सीडेंटली वी आर मुस्लिम्स नहीं, शऊरन हमें मोमिन बनना है, शऊरन हमें मुस्लिम बनना है और हर एक के लिए यह जरूरी है। तब जाकर ठीक से वो ईमान ला सकता है, ईमान की पाबंदी कर सकता है। और ईमान के साथ जरूरी है, ईमान का फ्रूट है अमल साले। फ्रूटलेस प्लांट को अप्रूट किया जाता है, उसको दूर किया जाता है, उसको पार्क में, गार्डन में नहीं रखा जाता है, उसको जड़ों से उखाड़ा जाता है। इसी तरह अगर अहले ईमान दीन पर नहीं रहते हैं, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, हटाया जाएगा, दूसरे लोगों को लाया जाएगा और वो बेहतरीन तरीके से फिर दीन पर चलेंगे। बहरहाल मुझे भी आपको भी मुसलसल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मांगने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। और हमारे रहबर कामिल हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहबर कामिल कौन हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मखलूक़ात के खालिक भी हैं, मालिक भी हैं। तो रब्बुल आलमीन का ये मंसूबा है, जो ठीक से दुनियावी जिंदगी में दीन के मुताबिक चलता रहेगा। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती के बाद फौरन तौबा करनी चाहिए और फिर अल्लाह को मनवाना चाहिए, राजी करना चाहिए। तो इस तरह चलकर इसके लिए इंशाअल्लाह एवरलास्टिंग लाइफ का मजदा है, पैगाम है, मैसेज है, ग्लैड टाइडिंग्स हैं, तो वो सिर्फ अहले ईमान के लिए है। और जो इनकार करे, चाहे वो अज़ीमुश्शान साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, ट्रेडर हो, जीनियस हो, पॉलिटिशियन हो, मिनिस्टर हो, अल्ट्रा रिचमैन हो, जो भी हो, वो नाकाम होकर रहेगा अगर उसने ठीक से ईमान नहीं लाया। इन बातों को हमेशा आप याद रखें। रब्बुल आलमीन हम सब को और पूरी उम्मत को, बल्कि पूरी इंसानियत को राह हक पर लाए, इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमें फलाह दारे नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।